Exercise 5.4. Here we have to use 4 formulae. The formulas are: first one, 1 upon x square minus a square. It is 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c. Then second formula, 1 upon a square minus x square. 1 upon 2a log of, it is a plus x upon a minus x plus c. Then third, 1 upon root of x square plus a square. The first two formulas without root, the next two formulas with root, which is log of mod of, आगे टर्म नहीं आता कुछ भी, x plus root of x square plus a square. And next 1 upon log of mod of x plus root of. Done. ये 4 फॉर्मे पढ़ने हैं for the exercise 4. So let's start with 5th question. Fifth question is based on substitution, जहाँ पे हमें let करना है. Integration of x cube 16x raised to 8 minus 25. This will be x cube. X raised to 8, I will write x raised to 4 and uska square. I want to make it quadratic. Let करेंगे t is equal to, let t is equal to x raised to 4. Derivative, जब भी let करेंगे derivative लेना है, 4x cube. Derivative with respect to x is 4x cube. Transfer dx on the other side. नंबर को LHS में ले लो dt के साथ. dt upon 4 is x cube dx. Now we'll start substituting the value into the integration. But if integration में मैं उसको proper form में convert कर दूं, so तुम्हारा जो question है, we have the question 1 upon 16x raised to 8. Sorry, here we have the integration. उसको मैं rearrange कर रहा हूँ. 16x raised to 4 the whole square minus 25. और जो x cube है, I'm writing with dx so that it will be easily get replaced. x raised to 4 को मैंने t assume किया था. I will write 16 t square minus 25 and x cube dx, which is my dt by 4. Now question को मैंने simplify कर दिया, 1 upon 4 out. It is 1 upon 16 t square minus 25 and this is what dt.
नाउ विल टेक इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक है, 16 को मैं लिखूंगा 4t द होल स्क्वायर, तो 25 को लिखूंगा 5 द होल स्क्वायर, it will be 1 upon x square minus a square. Now what is 1 upon x square minus a square? We'll use the formula 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a इंटू 1 अपॉन, अगर तुमने x अज्यूम किया है तो उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको नीचे लिखना है, प्लस सी। तो फाइनल आंसर 5 2 are 10, 10 4 are 40, 40 into 4 160. So 1 upon 160 log of 40 minus 5 upon 40 plus 5 plus c. करेक्ट, एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नाउ सिक्स क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, it is 1 upon a square minus b square x square. This time x is given as a second term, so 1 upon, it will be a square and it will be bx the whole square. मेरा दोनों स्क्वायर में हो गया, बट मेरा जो x है वो सेकेंड टर्म है, तो आई विल यूज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 2a log of a प्लस एक्स, एक्स मेरा bx है, a माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, 1 अपॉन 2ab log of a plus bx, a minus bx plus c. That's your answer. Question number 7. Integration of 1 upon 7 plus 6x minus x square. This is not perfect. This is a quadratic equation containing all the three terms. We'll have to solve to get in perfect two term square method. So for that we will use completing square method. But उसके लिए सबसे पहले इसको arrange करेंगे. My x square, x minus x square plus 6x plus 7. I will take minus common, bracket में x square minus 6x minus 7. अब completing square method concept यूज करेंगे. We want to have the third term, x square minus 6x. थर्ड टर्म क्या रहेगा, x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करना और उसका स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट 6, 6 का हाफ 3 और उसका स्क्वायर 9, तो प्लस भी करेंगे और इवन माइनस भी करेंगे. जो ये थ्री टर्म है, दीज आर द स्क्वायर, x minus 3 the whole square, minus 7 minus 9 is minus 16. एक बार हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर दिया, माइनस का ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मतलब ये जो टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, माइनस से मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा, 16 पहले आ जाएगा और x माइनस 3 होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा. 16 I can write as 4 का स्क्वायर and this is x minus 3 का whole square. Now we'll use the formula, it is 1 upon a square minus x square. What is a square minus x square? 1 upon 2a वाला formula इसमें. So it will be 1 upon 2a log of mod of a plus x.
a plus x upon a minus x into 1 upon coefficient of x, which is 1, plus c. Okay, so the final answer is 1 upon 8 log of, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस एक्स माइनस 3 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस सी. नाउ विल ऐड एंड लेस नंबर्स का जो भी रहेगा. 1 upon 8 log of, ऊपर जाएगा 4 माइनस 3 1, दैट इज 1 प्लस एक्स और नीचे 4 प्लस 3 जाएगा 7, 7 माइनस एक्स प्लस सी. दैट्स योर आंसर. ठीक है, सो मेथड क्लियर है कैसे करना है. हाँ सर. ओके, next question. Now the next question is of root type. So the next two formulae we are going to use, which is containing with root. Formula already I had given you. So 1 upon 3 x square plus 8. 3 को मैं बनाऊंगा root 3 x the whole square and 8 I can write as root 8 the whole square. So 1 upon root of x square plus a square is 1 upon 2a log of, sorry, 1 upon, this is my x and this is my a. So 1 upon root of x square plus a square is, it will be log of mod of x plus root of x square plus a square into 1 upon, अगर तुमने x assume किया तो x का कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, which is 1 upon root 3. root 3x plus root 3. तो रूट 3x अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो रूट 3x द होल स्क्वायर इज 3x स्क्वायर and root of 8 the whole square is just 8. और प्लस c at the end. That's it. तो रूट में बस रूट के फॉर्मूला यूज करना, बट वे ऑफ सॉल्विंग वही, मतलब तुम्हें दो टर्म का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर कंटेनिंग एक्स और दूसरा प्लस और माइनस ए का स्क्वायर कंटेनिंग नंबर कांस्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. if you have two terms you can easily solve, but if you have three terms you have to use completing square method to convert in two term square. This is my question. Now keep root as it is at the end till enter. कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करेंगे, जो भी x का कोएफिशिएंट विच इज 4 उसका हाफ करेंगे 2 और उसका स्क्वायर करेंगे विच इज 4 प्लस 4 भी करेंगे एंड माइनस 4 भी करेंगे.
Here it is x plus 2 the whole square. 29 minus 4 is 25. 25 को I can write 5 का square. So it is 1 upon root of x square plus a square. Now we'll use the formula. This is my x and this is my a. The formula is log of mod of x plus root of x square plus a square into coefficient of x 1 upon, तो it is 1 upon 1 ही आएगा. जब भी तुम्हारे पास ब्रैकेट में x के अलावा कोई भी टर्म रहा तो ऑलवेज राइट द कोएफिशिएंट. सो लास्ट में आंसर आएगा log of x plus 2 root of x plus 2 the whole square plus 5 का स्क्वायर आई कैन राइट इज 25 प्लस c. ठीक है, या तो आंसर यहाँ पे स्टॉप करो और एल्स इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट को और ओपन कर सकता हूँ x प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 25. वैसे देखा जाए तो x प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 25 को सिंप्लीफाई करने पे आई विल गेट द होल द सेम क्वेश्चन ओनली बिकॉज उसी को मैंने कंबाइन करके इस फॉर्म में किया था. सो राइट डाउन द क्वेश्चन इटसेल्फ. मतलब लास्ट में ब्रैकेट के अंदर तुम्हें क्वेश्चन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. 10th और 8th सिमिलर है, 9th और 11th सिमिलर है. टेंथ 1 upon root of 3x square minus 5. 3x को लिखूंगा रूट 3x द होल स्क्वायर. 5 को लिखूंगा रूट 5 द होल स्क्वायर. 1 upon x square minus a square is 1 upon 2a, sorry, log of mod of x plus root of x square minus a square into 1 upon coefficient of x and लास्ट में प्लस c. रूट 3x इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 3x रूट 5 का स्क्वायर 5. इसे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. अब इसको देखा जाए तो तुम्हारे जो ब्रैकेट के अंदर का ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, इसको और फर्दर नहीं. तो नॉर्मली रूट के अंदर हमेशा वो क्वेश्चन सेल्फ आ जाता है. 11th 1 upon x square plus 8x minus 20. तीन टर्म है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. एट का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 16 भी करेंगे.
36. थर्टी से मतलब 6 का स्क्वायर. 1/√(x²- a² is log of mod of x plus root of x² - a² plus c. और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो log ऑफ अंदर जो x plus 4 the whole square minus 6² अगर सिंप्लीफाई करेंगे विल गेट द क्वेश्चन which is x² plus 8x minus 20 and plus c. That's our answer. ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया. So we done with this 5.4. The next exercise is 5.5. There we have to study two concepts. Exercise 5.5. The first we'll have to study integration by parts. Which is also called as u into v rule. और दूसरा है टाइप. टाइप बता रहा हूँ कौन सा है. और फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज u into v rule. व्हाट इज u into v rule? अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका इंटीग्रेशन लेना है तो फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u integration of v the whole dx. This is u into v. U integration of v minus in integration derivative of u integration of v the whole dx. जहाँ भी u into v का मल्टीप्लायर है तो ये यूज करना है. दो टर्म है, बीच में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म में क्या है u और v का इंटीग्रेशन. सेकंड में क्या इन इंटीग्रेशन है, u का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, मतलब v का इंटीग्रेशन दोनों में ही लेना है. बट फर्स्ट so this is u into v formula, which is also called as integration by parts. U integration of v minus in integration derivative of u integration of v the whole dx. और जो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा दैट इज वी हैव अ
The second type is integration of e raised to x in bracket. You will have two function, एक f of x रहेगा और एक उसका डेरिवेटिव रहेगा, which is f dash of x. You have integration of e raised to x in bracket. You have f of x and f dash of x. तो इसका आंसर तुम्हें लिखना है e raised to x f of x plus c. इस टाइप में रहा तो डायरेक्टली आंसर लिखना है. आई टेल यू कौन से सम्स इस टाइप के रहेंगे. और जो फर्स्ट है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो तुम्हें याद करना है u इंटू वी. जैसे डेरिवेटिव में तो वैसे इंटीग्रेशन का भी u इंटू वी रूल है, बट द नेम इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हम लोग मतलब पार्ट्स करके लेंगे, u और v को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे. बट जैसे डेरिवेटिव में u और v में जो पहले आ गया उसको u लेते हैं, जो सेकंड फंक्शन रहेगा उसको v लेते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. जो तुम्हारा u और v रहेगा दैट वी चूज बाय ले रूल, LAE. तो जो फर्स्ट आया वो u लेंगे, जो सेकंड आया v रहेंगे. L stands for logarithmic, A stands for algebraic, E stands for exponential, L stands for log. मतलब log मतलब बेसिकली क्वेश्चन में अगर log आ गया, x आ गया तो log में काउंट होगा. अल्जेब्रिक मतलब x स्क्वायर हुआ, x क्यूब हुआ. एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर में या a के पावर में जो भी रहा वो एक्सपोनेंशियल. तो रूल ये है कि LAE ऑर्डर में रहेगा. तो जो L रहेगा, समझो L और A दो फंक्शन रहेंगे, तो L और A में L को U लेंगे और A को V लेंगे. अगर A और E आया तो A को U लेंगे और E को V लेंगे. तो जो फर्स्ट फंक्शन आया ले के हिसाब से उसको U लेंगे और सेकंड वाले फंक्शन को विल टेक V. नाउ मैं सम स्टार्ट करूँ, इट विल बी मोर क्लियर. 5.5 टोटल 6 क्वेश्चन इसमें है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x into log x dx. सो मल्टीप्लिकेशन दिया दो फंक्शन का, एक अलजेब्रिक दिया है और एक लॉगरिथमिक दिया है. एक अलजेब्रिक दिया और एक लॉगरिथमिक दिया है. तो ए और एल में एल पहले आता है ऑर्डर के हिसाब से. तो इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी log x पहले आएगा और x बाद में आएगा. log x पहले आएगा और a दैट इज अलजेब्रिक x बाद में आएगा. नाउ विल अप्लाई u into v rule. What is u into v rule? u integration of v minus in integration derivative of u integration of v the whole dx. x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2. डेरिवेटिव इन इंटीग्रेशन साइन है, डेरिवेटिव ऑफ log x, u का डेरिवेटिव विच इज 1 अपॉन x और v का इंटीग्रेशन है, मतलब x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2. मतलब सेकंड जो पार्ट है इन इंटीग्रेशन उसमें u और v दोनों का एक का डेरिवेटिव लेना और एक का इंटीग्रेशन लेना है. और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन लेना है सेकेंड टर्म वाला. तो यहाँ पे तुम्हारे पास log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इन इंटीग्रेशन. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा तो इट इज x बाय 2. तो x ऊपर और बाहर 1/2 ले लेता हूँ मैं. x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2. फाइनल आंसर हो गया, प्लस सी लास्ट में ऐड कर देंगे. तो तुम्हारा पूरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर log x. That's your answer. This is your final answer. Now
Second and third question are of similar type. Second I am solving here. I is equal to integration of x square into e raised to 4x dx. Let's start solving. We'll apply u into v rule. अब ये अल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो एल ए ई के हिसाब से ए हमेशा ई के पहले आता है, मतलब सीक्वेंस बराबर है, मतलब मेरा फर्स्ट फंक्शन यू और सेकंड फंक्शन वी. तो लेट स्टार्ट टेकिंग इंटीग्रेशन. तो फॉर्मूला है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx. एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, e रेज टू 4x का e रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन e रेज टू 4x डिवाइड बाय द होल dx. डिवाइड बाय 4 2 बाय 4 विच इज 1 बाय 2 हो जाएगा. अभी x इंटू ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन लेना, बट अगेन दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन विल अप्लाई u इंटू वी रूल. वन बाय टू बाहर आ जाएगा. अगेन u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये पूरा होने के बाद लास्ट में dx. डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ x वैसे रहेगा e रेज टू 4x का e रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 e रेज टू 4x का e रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 dx. अभी लास्ट फाइनल बाकी है. माइनस 1 बाय 4 बाहर आएगा. x e raised to 4x divided by 4 minus 1 by 4 e raised to 4x का e raised to 4x by 4 इंटीग्रेशन डन. लास्ट में प्लस सी, बस अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे. एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स ई रेज टू 4x. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा. 16 टू 32 प्लस 32 ई रेज टू 4x प्लस सी. या तो यहाँ पे स्टॉप करो या तो सब में तुम ई रेज टू 4x कॉमन ले सकते हो, बट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स लूज नहीं होंगे. यहाँ तक भी रखोगे तो भी चलेगा. दिस इज सफिशिएंट आंसर. तो जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसे थर्ड भी है. एक बार सेकंड क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. यहाँ पे ई रेज टू एक्स नहीं है. प्रॉपर्टी ये है कि whenever we are taking इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म ई रेज टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स प्लस सी. बट एक्स के अलावा कोई भी और टर्म रहा, बट और टर्म मतलब बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द मल्टीपल ऑफ एक्स ओनली. मतलब एक्स का मल्टीपल होना चाहिए, एक्स को चेंज नहीं करना है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब नहीं, सिर्फ एक्स होना चाहिए. तो इसका इंटीग्रेशन इजीली ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4, मतलब जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो नीचे आ जाएगा. अगर इंटीग्रेशन ऑफ से माइनस 7x बोला है तो ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स का जो भी कोई, और ये अपॉन लिखना कंपलसरी है जब भी तुम्हारे पास एक्स को छोड़ के कुछ और आया, बट इट शुड बी मल्टीपल ऑफ एक्स. लेकिन अगर समझो ई रेज टू माइनस 7 एक्स नहीं एक्स स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है.
इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं, तो वहां पे तुम्हें लेट करना पड़ेगा। तो वैसे ही जहां पे भी x रहा तो ठीक है, लेकिन x का पावर रहा तो देयर यू हैव टू लेट, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जो भी e का पावर है उसी को लेट करेंगे। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dt बाय dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, dt इज इक्वल टू 2x dx, dt बाय 2 इज इक्वल टू x dx, ठीक है। तो आई वांट x dx, मतलब dx का मुझे x चाहिए। यहाँ पे ब्रेक करेंगे, जो ऊपर एक्स क्यूब है विल ब्रेक, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि मुझे dx के साथ x चाहिए था, तो मेरे पास थी था, तो मैंने एक x dx को दे दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और e रेस टू एक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, मतलब होल थिंग, होल इंटीग्रेशन विच इज इन x विल चेंज इन t। तो एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा t से, ये भी t से, और जो x dx है वो बन जाएगा dt बाय 2। नाउ इट इज इजी टू इंटीग्रेट क्वेश्चन, 1/2 इंटू t इंटू ई रेस टू टी, मल्टीप्लीकेशन है दो वेरिएबल का, तो u इंटू वी रूट, विच इज इंटीग्रेशन बाय पास्ट। सीक्वेंस के हिसाब से अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल करेक्ट है, एल ए ई, ए पहले ही आता है ई के, तो विल अप्लाई u इंटू वी रूट। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v d dt, t के टर्म से dt, the whole dt। now we'll take integration, t वैसे रहेगा, e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t only, डेरिवेटिव ऑफ t is 1, e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to, इसका डेरिवेटिव है और इसका इंटीग्रेशन है, and the whole dt, so it is t into e raised to t minus integration of e raised to t dt। e raised to t का इंटीग्रेशन अगेन e raised to t ही रहेगा, दोनों में कॉमन क्या है, e raised to t, तो ब्रैकेट में t माइनस 1 प्लस c, और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की वैल्यू, e raised to x स्क्वायर, तो जब भी लेट करेंगे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड दैट्स योर आंसर, e raised to x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। The next question 5 onwards is based on the new type, and the type is this, integration of e raised to x in bracket, you have two terms in bracket, and those two terms are, एक फंक्शन रहेगा और दूसरा डेरिवेटिव रहेगा उसी फंक्शन का, और बीच में एडिशन साइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x in bracket we have f of x plus f dash of x, तो इसका आंसर आएगा e raised to x f of x plus c। क्या आंसर है, e raised to x f of x plus c। Okay, so now let's start with the question number 5th। तुम्हें उस फॉर्मेट में लेकर आना है, e raised to x f, ब्रैकेट में दो टर्म होने चाहिए, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। अगर दोनों टर्म अवेलेबल है और बाहर e raised to x है, तो सीधे आंसर, कोई कैलकुलेशन है, सीधे आंसर e raised to x और जो फंक्शन रहेगा वो प्लस c। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, e raised to x ब्रैकेट में e raised to x, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 1/x, बीच में मिडल में प्लस साइन चाहिए, तो जो माइनस रहेगा वो सेकंड टर्म को दे देंगे, एंड हियर आई कैन सी कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो हियर विल राइट डेरिवेटिव ऑफ 1/x,
मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है, मतलब ये मेरा फंक्शन हुआ और ये उसका डेरिवेटिव हुआ। तो अगर तुम्हें टाइप पता चलेगा सीधे आंसर लिख देंगे, ई रेस टू एक्स फंक्शन लिखने का 1/x, फर्स्ट वाला जो फंक्शन रहेगा वो 1/x प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ई रेस टू एक्स फंक्शन, बट कंडीशन है कि तुम्हारे पास बाहर ई रेस टू एक्स होना चाहिए और अंदर ब्रैकेट में दो टर्म के बीच में जो एडिशन है, तो एक टर्म फंक्शन होना चाहिए, दूसरा वाला टर्म उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो तुम्हें वर्किंग करके बताना पड़ेगा कि यस इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है। और यहाँ पे चाहो तो रीजन लिख देना कि मैंने क्या यूज किया, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x in bracket f of x plus f dash of x dx e raised to x डन। तो बाहर ई रेस टू एक्स को सेपरेट रहने दो और अंदर दो टर्म में ब्रेक करो, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ई रेस टू एक्स, बाहर तो है लेकिन अंदर दो टर्म नहीं दिया हुआ है, इट इज अ सिंगल टर्म ओनली, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ पे ब्रेक करेंगे हम, एक्स प्लस वन, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस वन भी करूंगा माइनस वन, और मैंने प्लस वन का एडजस्टमेंट क्यों किया, रूल ये है कि अगर तुम्हें दो टर्म बनाना है तो जो नीचे का टर्म है एक्स प्लस वन वो कंप्लीटली ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, तो मेरे पास एक्स था प्लस वन नहीं था, तो मैंने प्लस वन माइनस वन का एडजस्टमेंट किया। ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन कैंसिल, बीच में प्लस साइन डाल देंगे तो माइनस साइन दूसरे को दे देंगे। ठीक है, नाउ बाहर ई रेस टू एक्स है, अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग डेरिवेटिव लिख के बताएं क्या इसका डेरिवेटिव आएगा, तो विल राइट डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव एक्स अज्यूम के तो उसका अगेन डेरिवेटिव भी आएगा, अगेन डेरिवेटिव एक्स प्लस एक्स का वन और वन का जीरो, तो इट विल बी वन ओनली। तो आंसर है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एंड वी कैन सी यस डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो सीधे आंसर क्या लिख देंगे, अगर टाइप मैच हो रहा है कंप्लीटली, बाहर ई रेस टू एक्स और अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो आंसर ई रेस टू एक्स फंक्शन प्लस सी, डन, दैट्स इट। क्लियर है, तो दिस इज तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस वन था तो मैंने एडजस्टमेंट किया x प्लस वन माइनस वन एंड देन वी हैव माइनस वन, इट इज e रेस टू x प्लस वन माइनस वन माइनस टू। ब्रेक करेंगे और स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल होगा एक x प्लस वन, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, और ये बीच में प्लस करेंगे तो माइनस इसको दे देंगे। नो अगेन विल डू कि इसका डेरिवेटिव लेने पे क्या ये आता है, लेट्स चेक। विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन रेस टू माइनस टू,
मैंने पावर ऊपर ले लिया, तो इट विल बी n x रेज टू n माइनस वन विच इज माइनस टू माइनस वन, जिसको x अज्यूम किया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन, तो मैंने इसको x अज्यूम किया, x रेज टू n अप्लाई किया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट x का पार्ट, माइनस टू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस थ्री, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो माइनस टू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस थ्री, माइनस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस वन रेज टू थ्री, तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इज माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब। लेट्स चेक करें ये है क्या। यस, वी हैव माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब, सेम। तो मतलब ये फर्स्ट वाला फंक्शन है और दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव है, तो इट विल बी e रेज टू x फंक्शन, फंक्शन डेरिवेटिव नहीं फंक्शन, प्लस c, रीजन मतलब फॉर्मूला, इज इक्वल टू e रेज टू x e raised to x f of x plus c. That's it. This is question number 7. ठीक है।